Good evening, everyone. In chemical kinetics, today we are going to start with factors influencing a rate of a chemical reaction. कल जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, सबसे पहले we had seen little introduction about chemical kinetics. Why having the knowledge of chemical kinetics is important. हमने rate of reaction के बारे में बात की थी कल. अब rate of reaction को समझने के बाद we have to understand that what factor will affect rate of the chemical reaction. The rate of chemical reaction is affected by concentration of the reactant. It is affected by temperature and it is also affected by catalyst. तो actually ये तीन factors हम पढ़ने वाले हैं. We are going to study that how the rate of chemical reaction is affected by concentration of reactant. अगर gaseous reactant हुआ तो हम pressure consider करेंगे, how it is affected by pressure. We will study how the rate of reaction is affected by temperature, जिसमें हम Arrhenius equation के बारे में पढ़ेंगे. And we will also be studying that how catalyst affects rate of reaction. ये तो आपने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा कि catalyst increases rate of reaction, right? But how catalyst increases rate of reaction, that we will be studying here in chemical kinetics. ठीक है? तो सबसे पहला फैक्टर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है? डिपेंडेंस on concentration of reactant. Rate of a chemical reaction depends upon concentration of the reactant. किसी भी chemical reaction में the rate of that chemical reaction is influenced by, it is affected by concentration of reactant. If the concentration of the reactant increases, the rate will also increase. अगर reactant का concentration increase किया जाए, तो you will find that rate of reaction also increases. हम कह सकते हैं कि there is a direct proportionality. नहीं, अगर reactant का concentration बढ़ा, तो rate of reaction भी increase होगा. And just opposite to it, if concentration of the reactant is decreasing, the rate of reaction will also decrease. So you will get a correct picture of this dependence on concentration of reactant of a chemical reaction by understanding rate expression. Rate expression is nothing, it is an expression where rate of reaction is expressed in terms of concentration of reactant. Rate expression क्या होता है? Rate expression एक ऐसा expression है, एक ऐसा mathematical expression है जिसमें rate of reaction reactant के concentration के term में express की जाती है. Okay? तो let's discuss rate expression. इसको रेट लॉ भी कहा जाता है और सिंपली यू कैन कॉल रेट एक्सप्रेशन. सो रेट एक्सप्रेशन को समझने के लिए लेट अस कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन डिपिक्टेड एज दिस इक्वेशन, A mole of A plus B mole of B giving C mole of C and D mole of D. As per the theoretical explanation we have discussed till now, rate is proportional to concentration of reactant A and concentration of reactant B. X and Y are the exponents here, which may or may not be same as stoichiometric coefficient
in the balanced chemical equation. ध्यान से सुनना, x और y यहाँ पे एक्सपोनेंट्स हैं कंसंट्रेशन टर्म के, जो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. These are actually experimentally determined exponents. इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. इस टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहां और क्लियर समझ में आएगा कि ये एक्स और वाई होता क्या है. लेकिन अभी हम फिलहाल ये समझेंगे दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज, हाँ अभी ये समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूं. ऑन रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन वी प्लेस इक्वल, और इसके साथ मैं लिख रहा हूं K. So this becomes K A to the power X B to the power Y. इसमें K क्या है? K is proportionality constant, known as rate constant. K क्या है? K is proportionality constant, जिसको हम rate constant कहते हैं. K is proportionality constant, also known as rate constant. Fine. So कैसे हमने एक्सप्रेस किया? How we have shown the dependency of rate on concentration of the reactant. मैंने कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा. इससे पता चलता है दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of the reactants. But I have shown here some exponent on each of the concentration term, and we are going to discuss this exponent also. लेकिन आपको अभी यहां पे ये ध्यान रखना है कि this exponent x and y may or may not be same as the stoichiometric coefficients of reactant in balanced chemical equation. वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है. एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है. एंड हाउ डू वी डिटरमाइन दिस एक्सपेरिमेंटली? दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. yesterday we have discussed that instantaneous rate is written as minus dr by dt. लिखते हैं ना, इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखते हैं? माइनस dr by dt. And that instantaneous rate is also equal to K A to the power X and B to the power Y. Writing the rate expression in this form, this is called differential rate equation. इसको क्या कहते हैं? This is called differential rate equation. Differential रेट इक्वेशन. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. भले आपको 1 मार्क का पूछा जाए, बट इस तरह से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है. और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन. इसको हम क्या कहते हैं? रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो मान लीजिए कि अगर हमें रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन, ब्लैक मार्क, ब्लैक, सपोज इफ वी हैव टू डिफाइन रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन, कैसे हम डिफाइन करेंगे? कैन वी डिफाइन इट एज, जो दिख रहा है वही बताना है. कैसे डिफाइन करेंगे? रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड in terms of product of concentration of the reactants
each raised to some exponent which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reactants in balanced chemical equation. फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है रेट लॉ? It is such an expression where rate is expressed in terms of product of concentration of reactants raised to exponents which may or may not be same as stoichiometric coefficients of reactant in balanced chemical equation. है ना सिंपल? So rate law is an expression in which a rate is a rate of reaction is expressed in terms of concentration of a reactant is expressed in terms of product छूट गया यहाँ पे, product of concentration of reactant each raised to some exponent which may or may not be same as stoichiometric coefficients of reactants in balanced chemical equation. आ रहा है समझ में? क्या है रेट लॉ? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट इज एक्सप्रेस्ड in terms of product of concentration of reactant each raised to some exponent which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reactants in the balanced chemical equation. Clear? Easy है? चलिए, now we are going to discuss that how this x and y are determined experimentally. ये जो मैंने कहा ना कि x और y जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं एज ऑर्डर, है ना, सम ऑफ x एंड y गिव्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड x इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b. लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, इसे एक्सपेरिमेंटली किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है. इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. So I will be taking the same example for the discussion here and we will see that how x and y exponents are decided. ठीक है, just give a pause to it. इसको एक pause करो. चलिए, let's consider a chemical reaction nitric oxide plus oxygen giving nitrogen dioxide gas. Now as we have read that rate law expression is such an expression where rate of reaction is expressed in terms of molar concentration of reactant each raised to some exponent, each raised to some power, and that may or may not be same as stoichiometric coefficient. इससे ये पता चलता है कि रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइंड थियोरिटिकली.
आप सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए थ्योरेटिकली रेट लॉ डिटरमाइन नहीं कर सकते. रेट लॉ is always determined experimentally, and for the determination of rate law expression of this, an experiment is illustrated in your NCERT. I have taken this same illustration. क्या है ये illustration? तो यहां देखना, एकदम ध्यान से देखिएगा. Experiment 1 में you have to consider initial concentration of nitric oxide, initial concentration of oxygen, and then initial rate of formation of NO2. सबकी यूनिट भी मेंशन की हुई है. तो इनिशियली यहाँ पे 0.30 मोल पर लीटर ऑफ बोथ NO2 and O2 is taken. Initial concentration of nitric oxide is 0.30 मोल पर लीटर and oxygen की 0.30 मोल पर लीटर. And experimentally determined rate is 0.096. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 0.096. अब ध्यान दीजिएगा, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ O2 कांस्टेंट सेम, द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस. 0.30 से 0.60 कर दिया, डबल कर दिया. द कंसंट्रेशन ऑफ nitric oxide is increased to twice of the initial concentration, and it was observed that this rate of formation of NO2 increased by 4 times. क्या दिख रहा है यहाँ पे? Rate of formation of NO2 is increased by 4 times. तो याद रखना कि जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? 4 टाइम्स, है ना? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेट इनिशियल, इसको सिर्फ रेट ऐसे लिख देता हूं, रेट 1 लिख देता हूं, चलेगा? प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO होल टू दी पावर x, राइट? लिख सकता हूं ना? और अब दो डिफरेंट कंडीशन में रेशियो ले रहा हूं, तो दो डिफरेंट कंडीशन में रेशियो कैसे लूंगा? मुझे पता है पहली वाली रेट क्या आ रही है 0.096 और दूसरी वाली रेट क्या आ रही है 384. दैट विल बी इक्वल टू concentration of nitric oxide to the power x, and here 2 times concentration of nitric oxide to the power x. यही होगा ना? 2 times डबल किया ना कंसंट्रेशन, इसको आप 4 टाइम्स में कैंसिल कर लोगे, ये हो गया 1/4 और ये क्या बचेगा 1/2 टू दी पावर x. नाइट्रिक ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा. आप चाहो तो वैल्यूज भी डाल सकते हो, आप चाहे तो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0.30 0.60 रख सकते हैं ना. तो यही आएगा 1/2 टू दी पावर x. टेल मी द वैल्यू ऑफ x then. This can be written as 1/2 whole square and it is equal to 1/2 to the power x. That implies x is equal to 2. इसका मतलब ये हुआ that the value of x in the rate law expression should be 2. इसके rate law expression में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2. ये स्टेप जो मैंने किया ना, ये याद रखना. द सेम मेथड विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन आल्सो. आ रहा है समझ में? मैंने क्या किया, मैंने लिखा रेट प्रोपोर्शनल टू नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्सपोनेंट x. फिर मैंने यहाँ पे रेट की दो वैल्यूज ले ली, 0.096 एंड 0.384. रेशियो ले रहा हूं दो डिफरेंट कंडीशन में. और कंसंट्रेशन वाले साइड पे
मैंने ऐसे ही लिखा है, आप चाहो तो यहाँ वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 0.30 डिवाइडेड बाई 0.60। तो ऐसा करता हूं, मैं लिख ही देता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0.30 अपॉन 0.60 होल टू दी पावर x, दोनों का एक्सपोनेंट तो x ही था ना, तो होल टू दी पावर x हो गया, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, दैट्स व्हाई 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर x। और उसके बाद का तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, x की वैल्यू आ गई, राइट। सेम वे नाउ in the next set of experiment we will determine the other value। इसको इरेज करो, जस्ट अ मिनट। आप देख रहे हो कि एक और रिएक्टेंट यहां पे प्रेजेंट है, वो रिएक्टेंट कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट रिएक्टेंट, ऑक्सीजन। तो क्या मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख सकता हूं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर y। किस लिए आ रहा है समझ में, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर y, लिख सकता हूं ना। चलिए अब वापस से हम ये कंडीशन लेंगे, आप देखिएगा ध्यान से, 0.30 0.30 concentration of nitric oxide is kept constant here and concentration of O2 is increased to twice। ऐसा करने पे क्या हुआ, the rate has increased to twice। तो can I write like 0.096 divided by 0.192 is equal to, बोलो O2 का कंसेंट्रेशन यहां पे क्या था, 0.30 and here 0.60 whole to the power y। This cancels out in 2 times, this also cancels out in 2 times, you get 1/2 is equal to 1/2 whole to the power y। क्या मैं इसको आगे ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 whole to the power 1 and here also 1/2 whole to the power y, which means y is equal to 1। तो अब बताओ कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k concentration of NO to the power 2 concentration of O2 to the power 1, लेकिन 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। अच्छा, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा, माइनस dr by dt is equal to k concentration of NO, इजी। किसका, नहीं, रेट को हम माइनस dr by dt भी लिखते हैं ना, तो बस रेट की जगह माइनस dr by dt लिख दिया, दिस बिकम्स डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, है ना। आगे डिफरेंशिएशन नहीं करना है यहाँ पे, बस रेट की जगह माइनस dr by dt, और r चाहो तो आप इसमें कोई स्पेसिफिक रिएक्टेंट डाल सकते हो, NO या फिर O2, है ना, दैट विल बिकम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये जो मैंने आपको बताया ना, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इसी तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, जिसमें आपको ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यू विल बी गिवन दिस काइंड ऑफ द टेबुलर डेटा, all experiment concentration rate, all things will be given and you will be asked to determine order of that reaction। क्या पूछा जाएगा आपको, order of reaction determine करना। तो अभी मैं बता रहा हूं कि order of reaction क्या होता है, लेकिन आप order of reaction के साथ साथ rate law भी निकालोगे। तो order of reaction पूछा जाएगा, rate law पूछा जाएगा, differential rate पूछा जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर है, ये आ रहा है समझ में। ये वाला पार्ट, इसमें मैंने क्या रखा, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है,
चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने लिखा है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे मैंने इसकी डिपेंडेंसी दिखाई है। अब आप मुझे ये बताओ कि रेट पहले वाले में क्या आ रहा है 0.096 and that must be proportional to initial concentration of 0.30 to the power x। इसी तरह दूसरे कंडीशन में रेट क्या है 0.384 एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है 0.60 टू द पावर x। दोनों का रेशियो ले लिया मैंने, तो रेशियो लेने पे आपको ये मिला है ना। आगे सिंपल मैथमेटिक्स, इजी। चलिए इसको इरेज कीजिए। हाँ, ये याद रखिएगा दैट रेट लॉ इज नॉट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। रेट लॉ को हम कभी भी थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। merely looking at the balanced chemical equation you cannot tell rate law expression। कोइंसिडेंटली, मात्र एक संयोग है, यहां जो कुछ भी हो रहा है that is just mere a coincidence। आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था ना, which may or may not be same as stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient जैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहां पे कोइंसिडेंटली ये stoichiometric coefficient जैसा दिख रहा है, लेकिन ये याद रखना है कि कभी भी stoichiometric coefficient पे ये डिपेंड नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ये। ठीक है, और कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया। ओके, चलिए just pause it and then we will see order of reaction। Okay, now in continuation with rate law expression we will discuss order of a reaction। आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही मैं बता चुका हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिस्कस करते वक्त ही मैंने बता दिया that sum of exponent is order of reaction and the individual exponent to the reactants are order with respect to that particular reactant। वही अभी एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। order of a reaction, let's consider the rate expression once again। rate is equal to K multiplied by concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y, then X plus Y is equal to order of reaction। है ना इजी। इसी को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, the sum of exponents of reactants, the sum of exponents of concentration of reactant in the rate law expression is called order of reaction। easy। ऑर्डर
order with respect to chlorine will become 1 by 2 in that case. Order with respect to reactant chlorine will become 1 by 2. अरे बाबा, मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा ध्यान से सुनो तो सही. मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बोला, मैंने बोला ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन इज 1 by 2. ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 ऑल्सो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, है ना. चलिए, अब यहां पे ये समझ लीजिए x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and Y is order of reaction with respect to B. अभी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इस कॉन्सेप्ट पे इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने सिंपल इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करना होता है. एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में वी हैव सच क्वेश्चन. आज आपको वो एक दो क्वेश्चन करवा के आपको होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में एक चीज और याद रखोगे, इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. इट्स वैल्यू कैन बी 0, इट कैन बी एन इंटीजर, अ होल नंबर और इवन अ फ्रैक्शन. ठीक है, चलिए, अब ये समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर गिव्स इंसाइट इनटू अ केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर एक्सप्लेन्स अस दैट हाउ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स. केमिकल रिएक्शन एक्चुअली कैसे प्रोसीड होगा, कैसे रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पता नहीं चलता. रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स. दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, ऐसे रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन. whereas the reactions which are completed in sequence of different steps, they are known as complex reactions. ठीक है, तो reactions which are completed in a single step is called, are called elementary reactions, while reactions which are completed in sequence of several steps excuse, which are completed in sequence of several steps are called complex reactions. ठीक है, याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वैलिड फॉर बोथ द टाइप ऑफ रिएक्शंस. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ही टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए वैलिड है, मींस एलिमेंट्री के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी. एंड स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा, that slowest step is called
that slowest step is such which is used in determining order of overall reaction and it is also called rate determining step. ठीक है, क्या याद रहेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी होता है. अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में तो बहुत सारे स्टेप्स हैं या एक से ज्यादा स्टेप्स हैं, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी स्लोएस्ट स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं और उसी स्लोएस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं. शॉर्ट में उसको RDS कहा जाता है. RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. याद रहेगा? चलिए अब एक और इसमें बहुत बेहतरीन पार्ट जो एग्जामिनेशन में बार बार आता रहता है और इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरा यहां बैठा होना चाहिए, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी कभी कभी जस्ट आपको इस कॉन्सेप्ट से पता करना होता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा. बताता हूं क्या. वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. ठीक है, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें इतना तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू एक्स. मैंने क्या किया, रिएक्टेंट ए और बी की जगह पे सिंपली एक्स कर दिया. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू एक्स लिख सकते हैं ना, ऐसा है या नहीं? हमें क्या करना है, हमें रेट कांस्टेंट के की यूनिट डिसाइड करनी है. तो के क्या हो जाएगा? के इज रेट अपॉन concentration of reactant to the power x. right? अब यूनिट ऑफ के क्या होगा? यूनिट ऑफ के will be equal to unit of rate divided by unit of concentration of R to the power x. यही होगा ना? बोलो यूनिट ऑफ रेट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. एंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर होल टू द पावर x. इसको अगर आगे सॉल्व करूं मैथमेटिकली तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल टू द पावर x लीटर टू द पावर माइनस x. अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, लिखो ना यहां पे या यहां लिख दो. यूनिट ऑफ k is equal to mole to the power 1 minus x liter to the power x minus 1 and second inverse. अरे ये माइनस ये ऊपर आएगा तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा ना. -1 प्लस एक्स को x माइनस 1 लिख सकते हैं ना. हाँ, अब देखना जादू. इफ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ x इज 0. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड टेल मी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. Same as unit of rate. What will be the unit of rate constant for first order reaction? Substitute value of x as 1. ये दोनों तो
कैंसल हो जाएगा, ओनली सेकेंड इनवर्स इज लेफ्ट। मोल टू द पावर 0 लीटर टू द पावर 0, यही हो जाएगा ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर में x का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो मैंने यहां पे ये जो लिखा था ये x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। अब मैं अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलूं तो x क्या होगा, 0, 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 बचा, यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे सेम यही रहेगा। तो क्या यूनिट मिला, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए x क्या लोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x हियर एज 1, सेकेंड इनवर्स बचेगा। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या मैं इसको लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स कह सकता हूं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। What will be the unit of rate constant for third order reaction? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा बोलो, लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स, यही होगा ना। मतलब ये सिर्फ एक अगर आप याद कर लीजिए तो आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हो, है या नहीं। और एग्जामिनेशन में कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होगा जहां पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू और उसकी यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है। जैसे सपोज अगर किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दी हुई है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट के की यूनिट सेकेंड इनवर्स दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ हाँ तो हाँ सेकेंड इनवर्स होने पे फर्स्ट ऑर्डर होगा। सेकेंड अगर रेट कांस्टेंट के की यूनिट सेकेंड इनवर्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं की होगी, रेट कांस्टेंट के यूनिट से ही आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना होगा, ठीक है। और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रेट कांस्टेंट के की यूनिट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड हियर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन भी छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट में इट विल गेट ओवर। चलिए turn it off। चलिए now let's concentrate on the last topic for today's session, molecularity of a reaction. Molecularity of reaction is another very important property of a reaction which actually gives insight into mechanism of reaction। इससे ना रिएक्शन के मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। मॉलिक्युलरिटी होता क्या है, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज which may be an atom, a molecule or an ion. So the number of reacting species which is atom, molecule or ion in an elementary reaction which must collide simultaneously to bring about formation of a product, that is called
मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही वक्त पे जितने रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, एक साथ कोलाइड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, उसे मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है ना। कैसे डिफाइन? द नंबर, हाँ मतलब एटम आयन या मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहा है कोलाइड हो जाएगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, और कोलाइड में तो जितना जितना कोलिजन कर रहा है और प्रोडक्ट में रिजल्ट कर रहा है उसको मॉलिकुलरिटी कहते हैं। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which may be atoms, molecules or ions in an elementary reaction which collides simultaneously to bring about formation of product is called molecularity of that reaction. ठीक है? The number of reacting species, that is atoms, molecules or ions in an elementary reaction which must collide simultaneously to bring about formation of product, that is known as molecularity of reaction. तो देखो ये मैंने जो आपको सर्कल किया है ना यहाँ पे, वो क्यों सर्कल किया है? दीज आर एक्चुअली की टर्म्स इन द डेफिनेशन ऑफ मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। कैसे कीवर्ड है? तो एक तो पता चल रहा है कि मॉलिकुलरिटी इज मीनिंगफुल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। मॉलिकुलरिटी सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा हो। इट इज मींट ओनली फॉर single step reactions, that is elementary reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं निकलता। There is no meaning of molecularity for a complex reaction. It is meant only for elementary reaction. और दूसरा, you have to look for the number of reacting species which is colliding simultaneously and getting converted into product. एक खुशी वाली बात बता दूं, you will be very happy to know it. For elementary reaction, molecularity can be determined from stoichiometry of the reaction. Just looking at the stoichiometry of the reactants in balanced chemical equation, you can tell the molecularity of reaction. है ना खुश होने वाली बात? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थोड़े दुखी हो गए होंगे कि यार काश ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल पाता। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है, थ्योरेटिकल। ये कैसे मिलेगा? जैसे देखो, अमोनियम नाइट्राइट, when heated it decomposes into N2 and H2O. There is a single reactant molecule here. एक अकेला reactant molecule है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है। एक अकेला मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। बोलो मॉलिकुलरिटी क्या होगी? 1। मॉलिकुलरिटी क्या होगी? 1। इसे कहेंगे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन।
क्या होगा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू H2 गैस एंड I2 गैस। यूनि का मतलब होता है वन, तो मॉलिकुलरिटी वन हुआ इसलिए यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे देखो दो HI मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड होंगे तब ये बनेगा, तो दिस इज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। दिस इज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, मतलब मॉलिकुलरिटी क्या है? 2। Look at this reaction now. Tell me the molecularity. This is also elementary reaction. तो molecularity is 3. क्या बोलेंगे? Trimolecular reaction. अब मेरी बात को ना जरा गौर से सुन लेना। Trimolecular reactions are rare. Trimolecular reactions जो हैं वो rare होते हैं, and the possibility of a reaction to be having molecularity higher than 3 is not there. आप खुद ही सोचिए कि जब एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल थे कोलाइड हो रहे थे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, राइट? अब एक साथ 3 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स यूं आके कोलाइड होंगे तो क्या वो इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा? क्या वो कोलिजन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में रिजल्ट हो पाएगा? नहीं। इनफैक्ट ये 3 जो है ना, ये यही मॉलिकुलरिटी बहुत हाई हो गई। मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड होंगे तो उनमें रिपल्शन भी तो होगा, है ना? तो ये जो ट्राई मॉलिकुलर है, मॉलिकुलरिटी 3 इटसेल्फ इज अ हाई वैल्यू। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शंस भी बहुत रेयर होते हैं, है ना? अब देखिए एक आपको और एग्जांपल बताता हूं, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल ले रहा हूं। एनसीईआरटी से ज्यादा दूर हमें सोचने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट, फेरस सल्फेट and H plus in acidic medium, it gives potassium chloride, Fe2SO4 whole thrice and H2O। तो यहाँ पे ये 3 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, इसके लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए। चलो देखो बैलेंस्ड है, पक्का? ये बैलेंस्ड नहीं लग रहा है मुझे, ध्यान से देखिए तो। आर यू श्योर? एक मिनट, ये थोड़ा सा फॉर्मूला मुझे लगता है हाँ? हाँ सल्फेट आयन बैलेंस नहीं हो रहा था, अब ठीक है। अरे इट इज बैलेंस्ड नाउ। देखो यहाँ पे 6 सल्फेट और यहाँ पे 3, 9 सल्फेट है, यहाँ पे 9। ठीक है, ऐसे मैंने जो H प्लस आयन लिखा था, आप देखो इससे आपको हाइड्रोजन आयन 6 ही मिल रहा है। 3 to the 6 H प्लस आयन, 3 to the 6 H प्लस आयन, लेकिन सल्फेट बैलेंस नहीं हो रहा था, इसलिए मैं एक आयन लिख दिया था, कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख। तो अगर मान लो कि इस रिएक्शन का अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी बताना हो, कैसे बताओगे? 10 कैसे निकालेंगे? 1 6 7
7 और 3 10. Molecularity looking at the reaction is 10. इस रिएक्शन को देख के लग रहा है कि मॉलिक्युलरिटी 10 होनी चाहिए, लेकिन 10 मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल ही नहीं है. मॉलिक्युलरिटी 10 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. एक्चुअली दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस. देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. देखो, ऐसा क्वेश्चन देके ना ये सीधा मॉलिक्युलरिटी क्या है वो नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछते हैं तो ऑप्शन में ये जरूर होगा कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग इन दिस केस. ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और यहाँ पे समझने की जरूरत है, दैट इवन इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस which takes place in several steps, the slowest step there is useful in determining the rate of or order of the overall reaction with the help of molecularity of slowest step. जैसे इसका एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको बताता हूं. यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड decomposition is catalyzed by iodide ion and decomposes to water and oxygen. बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? यहां 2 लगा दूं और यहां 2 लगा दूं तो बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, अब ये ना एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप. इसका स्टेप 1 लिख रहा हूं मैं पहले. I am writing step 1 of this. तो step 1 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड in presence of iodide ion gives H2O and IO minus, hypoiodide ion. Step 2 is hydrogen peroxide plus hypoiodide ion results into H2O, I minus and O2. ये जो पहला वाला है ना, ये फास्ट होता है. द फर्स्ट वन इज फास्ट एंड द सेकेंड वन इज स्लो. पहला स्टेप कैसा होता है? फास्ट. और दूसरा स्टेप कैसा होता है? स्लो. यहां लिख भी देता हूं, दिस इज फास्ट, दिस इज स्लो. सनी यही है ना? पहला स्टेप इज फास्ट, दूसरा स्टेप इज स्लो. ठीक है, पक्का? चलिए, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकंड इज फास्ट. चलिए, सॉरी उल्टा हो गया था. पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है. मैं आपसे ये कह रहा था कि ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो स्लो स्टेप होते हैं इनको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं. और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी मॉलिक्युलरिटी होती है दैट इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. तो आप बताओ इस स्लो स्टेप में मॉलिक्युलरिटी क्या नजर आ रहा है? 1. सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस ओवरऑल रिएक्शन? 1 है ना? तो अभी तक के डिस्कशन से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है, उन कंक्लूजन्स को मैं यहां लिख रहा हूं. क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है जरा बोलोगे? पहला कंक्लूजन ये मिल रहा है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चलेगा ना? रिएक्शन शॉर्ट में लिखा है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन experimentally determined value and
it can be 0 or fraction, while molecularity is theoretically determined and it can not be 0 or fraction or negative integer. मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली डिटरमाइंड होता है और मॉलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, मॉलिकुलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is meaningful both for elementary and complex reactions. While molecularity of reaction is meaningful only for elementary reaction. अभी तक जो पढ़ा है आपने इसमें मैं वही लिख रहा हूं, isn't it? है ना. और यहां पे हमने क्या समझा है इस पर्टिकुलर स्टेप में, मैंने आपको बताया इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity of slowest step gives order of overall reaction. In a complex reaction, molecularity of slowest step gives order of overall reaction. ठीक है. ये पार्ट आपको डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाता है. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, whereas molecularity of the reaction is theoretically determined. Order of reaction can be 0, a fraction or an integer, whereas molecularity cannot be 0, a fraction, or it can never be a negative integer. Then order of reaction is true, meaningful both for elementary reaction and complex reactions, whereas molecularity is meaningful only for elementary reaction. ठीक है. इतने डिफरेंसेस काफी हैं. और ये याद रखिएगा एडिशनली कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी जो हम उसके स्टोइकियोमेट्री से पता करते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.